بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 34 نہیں حضور، ہم پر رحم کیجیے، ہمیں بچا لیجیے، ہمیں یہ قید منظور ہے، ہم پھانسی کے تختے تک نہیں جانا چاہتے، بھگوان کے لیے ہمیں بچا لیجیے، ہم پھانسی کے تختے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ کرنل اس کی التجائے سنتا رہا اور گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بکواس بند کرو، تم دونوں یہاں آزمائے جا رہے ہو، کل تمہاری آخری آزمائش ہے، اس کے بعد تم دونوں کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، جاؤ یہاں سے۔ ہم وہاں سے اپنے اپنے کمرے میں بھیج دیے گئے۔ ہم پر 3 قتل کے الزامات تھے، حالانکہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ پولیس انسپکٹر کو اور سامی نے چلتی ٹرین سے گرایا تھا۔ رانی لکشمی دیوی کا جسم حاصل کرنے کے لیے سامی نے اسے مارا تھا، پھر اس کے جسم میں آ کر اس نے راجپت رائے کو خنجر سے ہلاک کیا تھا۔ ہر جگہ سامی پیش تھی۔ بیچارے کیدار کا جرم صرف اتنا سا تھا کہ اس نے رانی کے مردہ جسم کو پتھر سے کچل دیا تھا۔ جرم سامی کر رہی تھی، الزام ہم پر آ رہا تھا۔ ہم کرنل سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ سب جادو منتر کی کاروائیاں ہیں اور سامی بلی بن کر ہمیں جرائم میں الجھا رہی ہے۔ میں کمرے میں آ کر سوچتی رہی، پھر مجھے کرنل کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ تعجب ہے، وہ کیسی آزمائش تھی جن کا علم ہمیں نہیں تھا، اور ہم نامعلوم آزمائشوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ کل آخری آزمائش تھی، میں الجھتی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کس طرح ہمیں آزمائیں گے۔ اس رات میں سو نہ سکی، کبھی بستر پر کروٹیں بدلتی اور کبھی اٹھ کر ٹہلتی رہتی۔ میں تصور میں کیدار کو پھانسی کے تختے پر دیکھتی تھی اور اپنے متعلق سوچتی کہ میں پھانسی کے وقت سامی کا جسم چھوڑ دوں گی۔ اس جسم کو چھوڑنے کے خیال سے ہی مجھے ایسا صدمہ پہنچتا تھا جیسے ابھی سے جان نکل رہی ہو۔ وہاں سے جان بچا کر نکلنے کی کوئی تدبیر کام نہیں آ سکتی تھی۔ عمارت کے اندر اور باہر فوج کے مسلح نوجوان ہمیشہ تیار نظر آتے تھے۔ بس ایک ہی آسرا تھا، سامی کا آسرا۔ اس کی وجہ سے ہم بچ سکتے تھے، اگرچہ اس نے ہمیں یہاں لا کر پھنسایا تھا۔ اس کے باوجود وہ کبھی اس جسم کو پھانسی کے پھندے تک جانے نہ دیتی۔ فوجی افسران جو کام اس سے لینا چاہتے تھے، وہ تمام کاموں سے انکار کر دیتی اور میرے ہی پیچھے بھاگتی پھرتی۔ ہاں، اس وقت وہی ایک ترک چال کی طرح میرے ہاتھوں میں تھی۔ دوسرے دن حسب معمول میں اور سامی ایک مخصوص کمرے میں رہے اور بھوانی شنکر بھی وہاں آیا کرتا تھا۔ سامی اپنی گردن اور پنجوں کے اشاروں سے جو سگنل دیتی، اسے بھوانی شنکر ایک کاغذ پر نوٹ کرتا اور ذہن نشین کرتا رہتا تھا۔ شام کو کرنل نے پھر مجھے طلب کیا۔ میں سامی کے ساتھ اس کمرے میں گئی تو کیدار وہاں موجود تھا۔ ایک 1.5 عمر کا انگریز کرنل کے قریب صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سامی اچھل کر اس کی گود میں چلی گئی، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے دونوں بازو پھیلائے میری طرف لپکا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ وہ انگریزی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا اور وہ زبان میرے پلے نہیں پڑ رہی۔ کرنل نے اس انگریز سے کہا، مسٹر جان پوکر، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ انگریزی جانتی ہی نہیں۔
फिर आप जैसे अंग्रेज की बेटी कैसे हो सकती है? मैं समझ गई वो अंग्रेज सामी का बाप था और मुझे सामी के रूप में देखकर धोखा खा रहा था। कर्नल के कहने के बावजूद उसे यकीन था कि मैं उसकी बेटी हूँ। इस बार उसने हिंदी ज़बान में मुझे मुखातिब किया। बेटी, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि तुम सिर्फ अपनी माँ की ज़बान हिंदी जानती हो और बाप की ज़बान अंग्रेज़ी नहीं जानती? मैं आपको नहीं पहचानती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी माँ एक हिंदुस्तानी औरत थी। उसने किसी अंग्रेज से शादी नहीं की थी। शादी की थी? क्या तुम अपनी माँ को भी भूल गई हो? वो तुम्हारी जुदाई में तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। क्या माँ की मौत की खबर सुनकर भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? वो काली बिल्ली सर झुकाकर अजीब व गरीब आवाज़ें निकालने लगी। वो अपनी माँ के मरने की खबर सुनकर रो रही थी। कर्नल और दूसरे फौजी अफसर उसकी इस हरकत को बड़ी हैरानी से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक वो ऐसी गमज़दा होकर क्यों रो रही है। लेकिन कोई नहीं समझ सकता था। उसके दिमाग उनके वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। उसका बाप भी उसे नहीं पहचान रहा था। दुनिया का कोई रिश्ता हो, वो सिर्फ जिस्म से पहचाना जाता है। वो सिर्फ सामी के जिस्म को पहचान रहा था जो मेरे कब्जे में था। वो बिल्ली को नहीं देख रहा था जिसके अंदर उसकी बेटी छुपी हुई थी और माँ के लिए रो रही थी, और बाप आकर उसके जूतों पर अपना सर रख के रो रही थी। इस दुनिया की हर मोहब्बत जिस्म के शोकेस में सजी हुई है। इसे जान पोकर भी मेरे शोकेस से धोखा खा रहा था। सामी को पाँव की ठोकर से एक तरफ हटा रहा था और मुझे बार बार कह रहा था, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे पहचानो। सामी, मैं इनकार कर रही थी। मुझे इनकार ही करना चाहिए था। जब एक किसी नौजवान की भेंट देकर सामी को हमेशा के लिए बिल्ली ना बना देती। इस वक्त तक कमिश्नर जॉन पोकर की बेटी बनना मुझे कबूल न था, क्योंकि मुझ पर 3 कत्ल के इल्ज़ामात थे और वो कमिश्नर मुझे इन इल्ज़ामात से नहीं बचा सकता था। सिर्फ वही फौजी जो अपने खुफिया मकासद के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहते थे, उसके लिए ज़रूरी था कि वो मेरी और केदार की हिफाजत करे। जॉन पोकर को बहुत देर तक इसरार करता रहा कि मैं उसकी बेटी हूँ। सामी भी बार बार मेरी तरफ आती थी, मेरी साड़ी के दामन को पकड़कर बाप की तरफ खींचती थी, यानी इशारतन कहती थी कि मैं इसके बाप के पास चली जाऊँ और उसके सीने से लग जाऊँ। वो बाप जो उसे बिल्ली समझकर नज़रअंदाज कर रहा था, उसे गोद में नहीं उठा रहा था, उसे सीने से नहीं लगा रहा था, फिर भी वो बाप की आरज़ू पूरी करना चाहती थी। वो उसके जिस्म को यानी मुझे सीने से लगाना चाहता था। जब एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को गले लगाता है तो उस वक्त जो मसरत हासिल होती है वो रूह की गहराई तक पहुंचती है। सामी का मकसद भी यही था कि जॉन पोकर मुझे गले लगाए और इसकी मसरतों को सामी अपनी रूह तक महसूस करे। मैं इतनी नादान नहीं थी कि इसके बाप को गले लगाकर बेटी जहर कर देती। मैं अपनी जिद पर कायम रही और मुसलसल इनकार करती रही। कर्नल ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मिस्टर जॉन पोकर, आप ख्वाह हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एक खानाबदोश लड़की, ये और उसका साथी दोनों ही खतरनाक है। ये अब तक 3 कत्ल कर चुके हैं। क्या आपकी बेटी में ऐसे जुर्म करने की सलाहियत है? जॉन पोकर ने इनकार करते हुए सर हिलाया। नहीं, मेरी बेटी किसी को कत्ल नहीं कर सकती, मगर क्या बताऊं, सर से पांव तक बहू सामी है। कर्नल ने कहा, एक ही शक्ल की 2 लड़कियां हो सकती हैं। क्या आप इस हकीकत से इनकार करेंगे? नहीं, मैं इनकार नहीं करता, मगर 2 हम शक्ल भी किसी इम्तियाजी निशान से पहचान लिए जाते हैं। मेरी बीवी ने मुझे बताया था कि सामी के बाएं कोले पर एक स्याह तिल है। आप किसी औरत से कहें कि वो इस लड़की को दूसरे कमरे में ले जाकर चेक करे। वो स्याह तिल ना हुआ तो मैं अपनी गुमशुदा बेटी की तलाश
परेशान होकर फौरन ही नज़रें झुका ली ताकि मेरी आंखों से परेशानी जाहिर न हो। मेरे बाएं कोहले पर वाकई स्याह तिल है और इस वक्त मेरा झूठ निकलने वाला था। मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा। एक ख्याल आता था कि मुझे हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। जान पोकर को और उनके फौजियों को बता देना चाहिए कि मेरे पास सामी का जिस्म है, लेकिन इसका दिल और दिमाग नहीं है और ना ही अंग्रेजी बोलने वाली ज़बान है। लेकिन मैं इतनी जल्द शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहती थी। मैं आखिर वक्त तक हिम्मत हारने वाली औरत नहीं हूँ। मैंने सोच लिया कि तन्हाई में जो औरत मेरा लिबास उतारने आएगी, मैं उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत समाइत करूँगी ताकि वो दिल का जिक्र ना करे। थोड़ी देर बाद एक उधेड़ उम्र औरत आई। वो भी फौजी वर्दी में थी। वो नाम की औरत थी, वरना चेहरा और जसामत मर्दों जैसी थी। उसकी आंखों की चमक और जबड़ों की सख्ती देखकर पता चलता था कि वो मेरी बिन्तो समाजत और आंसुओं से नहीं पिघलेगी। वो कर्नल के सामने अटेंशन होकर इसकी हदायत सुनती रही, फिर मुझे साथ एक छोटे से कमरे में ले गई। सामी मेरे पीछे पीछे आई थी। जब उसने देखा कि मैं सिर्फ एक औरत के साथ कमरे में थोड़ी देर के लिए बंद हो रही हूँ, तो वो मुतमईन होकर अपने बाप के पास चली गई। इस अधेड़ उम्र औरत ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर उसने पलटकर मेरी जानब देखा तो उसके देखने का अंदाज बदल चुका था। उसकी आंखें किसी मर्द की आंखें थी। वो आंखें मेरे हुस्न और शुबाब को ललचा कर देख रही थी। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनमें औरतों की खुसूसियात नहीं होती, इनके रवैये में मर्दानापन होता है। मैंने इसकी नीयत को भांपते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तो मुझसे क्या चाहती हो। मैं इनकार नहीं करूँगी क्योंकि वो बिल्ली या नहीं है। मैं तुम्हें खेलने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी शर्त? मुझे तुम्हारी खातिर हर शर्त मंजूर है। बोलो क्या चाहती हो। मैंने कहा, तुम बाहर जाकर कहोगी कि इसके कोले पर तिल नहीं है। तुम अपने बाप को डैडी क्यों नहीं कहती? नफरत से अंग्रेज कह रही हो? हम हिंदुस्तानी हैं। हमने अंग्रेजों से नफरत करके ही इन्हें देश से निकाला है। मैं एक अंग्रेज की बेटी कहलाना पसंद नहीं करती। मुझे अपनी माँ से भी नफरत है कि उसने एक अंग्रेज से शादी की थी, इसलिए मैंने अंग्रेजी ज़ुबान नहीं सीखी। मेरे मुंह में जो आया मैं कहती थी। अपनी जहालत पर पर्दा डालने के लिए मैंने उसे अच्छी तरह जता दिया कि अंग्रेज़ों से नफरत की वजह से मैंने इनकी ज़बान नहीं सीखी, लेकिन फजूल बातें कर रही थी क्योंकि वो मेरी बातों से ज़्यादा मेरी जवानी से मुतासर हो रही थी। तुम बहुत सुंदर हो। वो मुझे देख रही थी, जगह जगह से टटोल रही थी। तुम जो चाहती हो वही होगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। हम बड़े हाल में वापस आए तो कर्नल ने पूछा, हमने इतनी देर क्यों कर दी? इस औरत ने जवाब दिया, ये बहुत शर्मीली है, लिबास उतारना नहीं चाहती थी। मैं बहुत देर तक इसे समझाती और मनाती रही, फिर भी राजी ना हुई तो मुझे ज़बरदस्ती से काम लेना पड़ा। मैंने अच्छी तरह देखा है, इसके दाएं बाएं किसी भी कोले पर तिल नहीं है। इसका बयान सुनकर जान पोकर ने मायूसी से मुझे देखा और सर झुका लिया। कर्नल ने कहा, मिस्टर जान, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं आपकी दिलजोई के लिए इस लड़की को आपके हवाले कर देता। आप उसे पाकर बेटी का काम भूल जाते, लेकिन अफसोस कि ये एक मुजरमा है। इसे सिर्फ कानून के हवाले किया जा सकता है। जान पोकर ने कर्नल से रुखसती मुसाफा करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं भी कानून का एहतराम करता हूँ और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। ये कहकर वो जाने लगा। सामी कश्मकश में मुब्तला हो गई। उसे अपने बाप के पीछे चलते चलते पलटकर मुझे देखने लगी। वो उलझ गई थी कि बाप के साथ जाए या मेरे साथ लगी रहे। आखिर उसे रुकना पड़ा। उसका बाप चला गया। वो अपना जिस्म मेरे पास छोड़कर न जा सकी। शायद ये सोचकर उसका बाप आज नहीं तो फिर कभी मिल जाएगा, लेकिन इस जिस्म को मैंने गैर मर्दों के हवाले कर दिया तो फिर इसकी दोशीज़गी बाकी नहीं रही।
مجھے صرف پریشان نہیں کر رہی، میں بھی اسے پریشان کر رہی ہوں۔ اس کے لیے اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی تھی کہ اس کا باپ وہاں آیا، مگر ڈیڈی کہہ کر اس کے گلے نہ لگ سکی۔ وہ اپنی ماں کی موت پر آنسو بہانے نہ جا سکی، وہ میرے پیچھے بھاگتی رہنے پر مجبور تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے نڈال سی بیٹھی رہی، پھر اس نے اچانک ہی گھرا کر اس عورت کو دیکھا جس نے دل کے متعلق بیان غلط دیا تھا۔ اس کا باپ جس ثبوت کے ذریعے مجھے اپنے ساتھ لے جاتا اور ثبوت کو اس کے جھوٹ کہنے پر کھلے سے غائب کر دیا تھا، اس جھوٹ اور فریب پر وہ تلملا گئی۔ وہ یکبارگی چھلانگیں لگاتی ہوئی آئی اور اچھل کر اس عورت کے منہ پر پنجہ مارتی ہوئی اس کا گرے